امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر تازہ حملے، مہرآباد ایئرپورٹ پر شدید بمباری، شہر ارک اور محلات میں رہائشی علاقوں میں حملوں میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ خمین میں لڑکوں کے اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فضائیہ نے چابہار کے قریب ایرانی فوجی تنصیبات پر بم برسائے۔ ہلال احمر کے دفاتر پر بھی بمباری۔ ایران میں شہادتیں 1500 ہو گئی، 30 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں نئے فضائی حملے، عرب میڈیا کے مطابق لبنان میں جاری حملوں کے نتیجے میں اموات کی تعداد 850 تک پہنچ گئی، 100 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے کے بعد ایندھن کے ٹینک میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پروازیں عارضی طور پر معطلی کے بعد بتدریج بحال ہونا شروع ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے مطابق ایران سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق رات سے اب تک 61 ڈرونز مار گرائے گئے۔ کویت میں بھی 24 گھنٹوں کے دوران 2 ڈرونز تباہ کیے گئے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 4480 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,49,385 کی سطح پر آ گیا۔ کرنٹ انڈیکس 1,49,505 پر ٹریڈ۔ بیشتر ایشیائی ممالک کے سٹاک مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان۔ افریقین فوجی کارروائیاں روک کر کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں، ترجمان چینی دفتر خارجہ کی اپیل۔ پشاور میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے 30 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، اسلحہ اور گولہ بارود کی نمائش یا ہوائی فائرنگ پر پابندی۔ آتش بازی اور پٹاخوں کی خرید و فروخت اور نمائش بھی ممنوع قرار۔ ون ویلنگ، تیز رفتاری اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر بھی پابندی ہوگی۔ رحیم یار خان میں چھت گرنے سے 5 خواتین جاں بحق، 55 زخمی ہو گئی۔ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقم لینے کے لیے دکان پر آئی تھی۔ لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ ایران کے خلاف جنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنہا کر دیا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل پر دنیا خاموش۔ بحری بیڑا بھیجنے پر برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس، کینیڈا، جاپان، چین نے ٹرمپ کو نہ کر دی۔ جرمنی نے بھی یورپی مشن بھیجنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ امریکی صدر منتوں سے دھمکیوں پر اتر آئے۔ حمایت نہ کرنے پر نیٹو کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ چینی صدر سے شیڈول ملاقات مؤخر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ آبنائے ہرمز بند، دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بے قابو۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 2% اضافہ، فی بیرل قیمت $102 ہو گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $106 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ توانائی بحران میں مزید شدت آ سکتی ہے، تیل کمپنیوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے سبب توانائی بحران مزید شدید ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش تیل کی ترسیل اور قیمتوں پر اثر ڈال رہی ہے۔ ایران سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر ایران شاید مذاکرات نہیں چاہتا۔ ایران کسی ایسے معاہدے تک پہنچنے کو تیار نہیں جس سے جنگ ختم ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی سے متعلق چین سمیت 7 ممالک سے رابطہ کیا ہے۔ ان ممالک نے مدد نہ کی تو ہم یاد رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکام رہے تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ ٹرمپ کی دھمکی، تعاون نہ کرنے پر ٹرمپ کا برطانیہ سے بھی اظہار ناراضی۔ امریکی صدر نے کہا ایران کو کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ امریکہ سے جنگ بندی کا کبھی نہیں کہا، جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک صدر ٹرمپ یہ نہیں سمجھ لیتے کہ ایک غیر قانونی جنگ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا ایرانی ایندھن تنصیبات یا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو رد عمل بہت واضح ہوگا۔ مذاکرات کے دوران امریکہ نے حملہ کیا، اب ہمیں امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ واضح ہو چکا امریکہ حملوں کے لیے ہمارے پڑوسیوں کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ ایرانی بحریہ ختم ہو چکی تو ٹرمپ خلیج فارس میں امریکی
बहरिया भेज दें। पासदारान इंकलाब का अमरीकी सदर को तंजिया पैगाम, कहा अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया। ट्रंप हिम्मत करें, खलीज में अमरीकी नेवी भेजें। अभी 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल अभी इस्तेमाल में नहीं लाए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी, कहा अगर नेतन्याहू अब तक जिंदा है तो उसका ताकुब करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहान का टेलीफोनिक राबता, ईरानी हमले मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार। अमाराती सदर और सऊदी वली अहद ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दोनों रहनुमाओं का मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का फ्रांस के सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ता, जंगी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी और फ्रांसीसी सदूर ने खित्ते में ताज़ा तरीन तब्दीलियों और रूनुमा होने वाले वाक़यात का जायजा लिया। मैक्रोन की ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की दावत, कहा कशीदगी में कमी वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का अमरीकी सदर ट्रंप से राबता, आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी जहाज रानी में पैदा होने वाली रुकावटों पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी से मौजूदा सूरत हाल की आलमी मईशत पर पड़ने वाले असरात पर बातचीत। मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर मज़ीद मुशावरत जारी रखी जाएगी, दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। टैंकर में आग लगने से एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल, परवाजों की लैंडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। उधर ईरानी फौज ने मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी पनागाहों को निशाना बनाने की फिर धमकी दे दी, कहा अमरीका खित्ते से अपनी सनतें मुंतकिल करे। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 54वीं लहर। ईरान ने सजील मिसाइल दाग दिए। 2 टन वजनी वॉर हेड से लैस खरमशर, खैबर शिकन, कदर और उमाद मिसाइल ने भी तबाही मचा दी। इसराइली फ़ज़ाइया के कमांड सेंटर, फौजी और दिफाई सनतों को निशाना बनाया गया। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तेल अवीव में इमारतें और गाड़ियाँ तबाह। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 100 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी। अमरीकी फ़ौज की ईरानी हमलों में 11 हलाकतों की तस्दीक। अब तक 15 इसराइली भी मारे जा चुके, 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। अमेरिका ने ईरान जंग में अब तक $12 अरब झोंक दिए। अमेरिकी सदर के इक्तिसादी मुशीर केविन हीस्ट ने इत्तलात की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग पर अंदरूनी मुखालफत का सामना। ट्रंप के फैसले पर डेमोक्रेट की खुलकर तनकीद। रिपब्लिकन्स ने भी खदशात जाहिर कर दिए। मिड टर्म इंतखाबात में ट्रंप पर खतरा मंडलाने लगा। ताक रातों में लैलतुल कद्र की तलाश। पाकिस्तान में रमजान मुबारक की 27वीं शब आज होगी। तरावी में खत्मुल कुरान के बाद खुसूसी महाफिल होंगी। घरों और मसाजिद में खुसूसी इबादत का इंतजाम होगा। हजारों मुतकिफीन भी इबादत में मशगूल रहेंगे। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी कराई जाएंगी। मौसम के बदलते रंग, मुख्तलिफ शहरों में ठंडी हवाएं, जाती सर्दी लौट आई। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। लाहौर, मरी, रावलपिंडी, जहलम, सियालकोट और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। कर्क, हरीपुर, खैबर कोहाट में भी बादल जमकर बरसे। बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई।
मशरिक़ वस्ता जंग के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, ग़िज़ाई सूरत हाल और वाफिर अशिया की बरामदात का जायज़ा। आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तादाद में इजाफा। वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को दरकार अशिया खुरोनोश की फराहमी और उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखने की हिदायत। मुल्क में मौजूद अशिया खुरोनोश के ज़खायर और पैदावार पर भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म का मकामी ज़रूरियात की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। अफगानिस्तान में तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत चित्राल से मुल्हिक अफगान बादानी पोस्ट तबाह। फितना खवारिज को पसपाई का सामना। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर कामयाबियों के आदाद शुमार बता दिए। अब तक अफगान तालिबान और फितना खवारिज के 684 कारिंदे जहन्नुम वासिल, 912 से जायद जख्मी, 252 चेक पोस्टें तबाह हो चुकी, 44 पर कब्जा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की MQM को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। सदर और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, कराची की सबसे बड़ी जमात MQM को एतमाद में नहीं लिया जाता। MQM और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात होगी। गुज़िश्ता रोज़ सदर आसिफ जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई थी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं कि चांद देखने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। ऐलान शहादतें मौसूल होने पर किया जाएगा। ईद की तातीलात 20 और 21 मार्च को होंगी। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद पर खुसूसी ट्रेनें चलाने का भी फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 17 मार्च को क्वेटा से रावलपिंडी जाएगी। तीसरी ट्रेन 17 मार्च को कराची से पेशावर रवाना होगी। चौथी ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। ईद शॉपिंग जोरों शोर से जारी। बाजारों में अरूज पर पहुंच गई खरीदारी। शहर शहर दुकानदारों की चांदी हो गई। बाजारों में खवातीन और बच्चों का रश। महंगाई के शिकवे भी जुबान ज़द-ए-आम हो गए। और लॉस एंजलिस में सजा ऑस्कर अवार्ड्स का रंगारंग मेला। हॉलीवुड सितारों ने रेड कारपेट पर जलवे बिखेर दिए। बेहतरीन फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर एन अदर ने जीत लिया। अदाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 6 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। फिल्म सिनर्स ने 4 अवार्ड्स हासिल किए। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड माइकल बी जॉर्डन के नाम रहा। ईरान और फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब में कैनेडियन नयाद उर्दनी अदाकारा सजा किलानी और फ़लस्तीनी अदाकार आमिर की अमन की फाख्ता का बैस लगाकर ऑस्कर अवार्ड की तकरीब में शिरकत। जंग की बजाय अमन पर जोर।